friends and viewers, my name is Gurpreet Kaur. I am your IELTS trainer. How are you? I think you are good. I am also fine. Today we are going to talk regarding the true, false, not given. ਵੀ true, false ਤੇ not given ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਰੀਅਲੀ not given ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ नो ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਿਸ ਤੇ ਟਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਲਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਟਰੂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਫ ਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਗਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟਰੂ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਭਲਾ ਕਿ ਉੱਧਰ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਥਡ ਫॉर ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਿੰਗ ਦ ਅਰਥ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਵ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਚੇਂਜਡ ਠੀਕ ਅਤੇ ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ few years ago the method for evaluating the earth population has modified ठीक है ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਆ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਸਟ ਦੇ ਹੈਵ ਮੋਲਡ ਦ ਆਨਸਰ ਆਫ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਈ ਵਿਚ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਫਾਲਸ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਉੱਧਰ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਾਲਸ not given is not always that the information is not given or if information is absent but the key point ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਸਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਵਰਡ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਉਹ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੂੰਗੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਆਏ ਆਈ ਹੈਵ ਰਿਟਨ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰਸ ਹੇਅਰ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਮੈਥਡ ਫॉर ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਿੰਗ ਦ ਅਰਥ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਵ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਚੇਂਜਡ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਮੈਥਡਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਸਟ ਦੇ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ ਫਰੋਮ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਦ ਈਅਰ 2050 ਨੀਅਰਲੀ 80% ਆਫ ਦ ਅਰਥ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਲਿਵ ਇਨ ਦ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰਸ 2050 ਤੱਕ ਕੀ ਆ 80% ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਪਲਾਈਂਗ ਦ ਮੋਸਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਟੂ ਕਰੰਟ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਟਰੈਂਡਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਰੈਂਡਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਟਰੈਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਐਸਟੀਮੇਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦ ਹਿਊਮਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬਾਈ ਅਬਾਊਟ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਬਾਈ ਦੈਨ an estimated 10 to power 9 hectares of new land about 20% larger than Brazil will be needed to grow enough food to feed them if traditional farming methods continue as they are practiced today ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਬਟ ਦੇ ਹੈਵਨਟ ਗਿਵਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਓ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਆਰ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਫॉर ਸਮ ਆਫ ਦ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਟੂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਲੈਂਡ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤੀ ਆ ਫੂਡ ਵਾਲੀ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ throughout the world over 80% of land that is suitable for raising crops is in use 80% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ historically some 15% of that has been laid waste by poor management practices ਤੇ ਜਿਹੜੀ 15% ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪੂਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਸਟ ਦੇ ਹੈਵ ਮੋਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਟੂ ਲੈਂਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਲੈਂਡ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਦਾ 15% ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਮ ਲੈਂਡ ਹੀ ਹੋ ਗਈ 15% ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ
दैन नैक्सट क्वेश्चन सी द क्रॉप्स प्रोड्यूसड इन वर्टिकल फार्म्स विल डिपेंड ऑन द सीजन। ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਫਾਲਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੌਪਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ ਵਨ ਸੱਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਜ਼ ਫॉर ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦ ਕੰਸੈਪਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਮਲਟੀ ਸਟੋਰੀ buildings in which food crops are grown in environmentally controlled conditions। environmentally controlled conditions या भी उत्थे सारा कुछ आप कंट्रोल कर सकते होंगे, सब कुछ कंट्रोल किया जाऊगा। तो देयर इत्थे उन्होंने की कहा है सीजन ते डिपेंड करनगे, बट उन्होंने उधर की कह दिता आपां नूं भी इन्वायरमेंटली कंट्रोल्ड कंडीशनस दे उत्ते डिपेंड करनगियां। इन्वायरमेंटली कंट्रोल्ड कंडीशनस होणगियां मतलब सीजन का उत्थे कोई इफैक्ट नहीं होगा वर्टिकल फार्म्स दे विच। सो एक ही फॉल्स कॉन्ट्राडिक्शन। सम डैमेज टू फूड क्रॉप इज़ कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के करके भी थोड़ी बहुत डैमेज होंदी है फूड क्रॉप्स नूं। ये हुण आपां देखदे हां वेयर दे हैव गिवन दिस। इत्थे दिता होया इन्हां ने, देखो उन्होंने की कहा है however more often than not now due to rapidly changing climate that is not what happens। massive floods, long droughts, hurricanes and severe monsoons take their toll each year destroying millions of tons of valuable crops। मतलब की कहा उन्होंने ड्रॉट्स फ्लड्स हो गए, मॉनसूनस हो गया, रेनी सीजन हो गया, वो की करते हैं मिलियन ऑफ टन ऑफ वैल्यूएबल क्रॉप्स नूं की करते हैं डिस्ट्रॉय कर देंगे हमेशा। तो इधर भी उन्होंने यही कहा सीगा सम डैमेज टू फूड क्रॉप्स इज कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज या फ्लड्स इज़ अ क्लाइमेट चेंज। मॉनसूनस जिहड़े आउंदे आ एक्सटेंडेड मॉनसूनस या ये क्लाइमेट चेंज है। फिर अगे उन्होंने कहा फर्टिलाइजर्स विल बी नीडिड फॉर सर्टेन क्रॉप्स इन वर्टिकल फार्म्स। ये हैगा फॉल्स भी थोड़िया जिहा क्रॉप्स के लिए आपां नूं फर्टिलाइजर्स चाहिए होणगे। तो हुण आपां इधर देखते हैं कित्थे लिखा है दिस इज़ गिवन हेयर। ठीक ऑल द फूड कुड बी ग्रोन ऑर्गेनिकली एलिमिनेटिंग द नीड फॉर हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। हर्बिसाइड्स भी नहीं चाहिए होंगे, पेस्टिसाइड्स भी नहीं चाहिए होंगे, फर्टिलाइजर भी नहीं चाहिए। एलिमिनेटिंग इन्होंने इत्थे सिनोनियम दिता। उधर उन्होंने आपां नूं कहा सीगा भी फूड सर्टेन क्रॉप्स के विच आपां नूं की चाहिए होगी फर्टिलाइजर्स, बट उन्होंने इत्थे कह दिता ऑर्गैनिकली ग्रो करांगे आपां, ऑर्गैनिक मैथड्स यूज़ करके ग्रो किए जाएंगे, कोई पैसटीसाइड कोई फर्टिलाइजर कुछ नहीं चाहिए होगा। तो इसलिए इधर की है ये फॉल्स आ। फर्टिलाइजर्स विल बी नीडिड फॉर सर्टेन क्रॉप्स, नो किसी भी क्रॉप के लिए नहीं चाहिए होंगे। फिर दैन क्वेश्चन हैगा वर्टिकल फार्मिंग विल मेक प्लांट्स लैस लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय इनफैक्शियस डिसीजेस। इनफैक्शन ना जड़ियाँ डिसीजेज लगनगियाँ वो बहुत घट लगनगियाँ। ठीक है, लैस लाइकली मतलब बहुत ज़्यादा घट होगा कि इनफैक्शन वाली डिसीजेज लगनगियाँ। तो नाल ही उन्होंने दिता होया द सिस्टम वुड ग्रेटली रिड्यूस द इंसीडेंट्स ऑफ मैनी इनफैक्शियस डिसीजेज दैट आर एक्वायर्ड एट द एग्रीकल्चर इंटरफेस। ठीक भी जिहड़ियां रिड्यूस ग्रेटली रिड्यूस मतलब बहुत ज़्यादा हद तक रिड्यूस कर दित्तियां जाणगियां। इनफैक्शियस डिसीजेज इंसीडेंट मतलब उन्हां दा जिहड़ा खतरा आ जिहड़ियां ओह हुंदियां आ उन्हां दे, क्योंकि इक्वायर्ड एट द एग्रीकल्चर इंटरफेस जिहड़ा कि अजकल की बहुत ज़्यादा उन्होंने की फसलों नूं खराब किया होया उन्हां दी गल कर रहे। इधर भी उन्होंने उही जस्ट कहा सी जस्ट दे हैव मोल्ड द सेंटेंसेस वर्टिकल फार्मिंग विल मेक प्लांट्स लैस लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय इनफैक्शियस डिसीजेस। तो उन्होंने की कह दिता जिहड़ा सिस्टम है वुड ग्रेटली रिड्यूस बहुत हद तक रिड्यूस कर दूगा, मतलब थोड़िया जिहियां क्रॉप्स आ जिन्हों कि बीमारियां लगन का खतरा हो सकता है। तो ये जो आप रीडिंग पैसेज किया सी दिस वॉज फ्रॉम कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज दियां बुक्स ही मैं ज़्यादा प्रैफर करती हूँ बिकॉज दैट आर द ऑथेंटिकेटेड बुक्स। दे इवें दा ही आपां नूं हमेशा पेपर दे विच भी आपां नूं हमेशा इवें दे ही आउंदे आ। अज आपां की सीखिया ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। तो मैनूं लगदा कि तुहानूं ये वीडियो बहुत यूजफुल रही होगी क्योंकि मैं सब तरीके चंगे तरीके दे नाल आपां एक्सप्लेनेशन दे नाल मैं तुहानूं सब कुछ दस्सिया है कि किवें किवें ये हुंदा है। ट्रू हमेशा ये नहीं हुंदा कि एग्री करदे आ, जस्ट दे हैव मोल्डड द
होल थिंग। समटाइम्स बच्चों को की लगता कि ये ट्रू नहीं गा, इन्होंने लाइन टू लाइन नहीं दसिया, लाइन टू लाइन कदे नहीं दसदे, जस्ट वो इन्फॉर्मेशन दिंदे आ ते वो हमेशा सही होंदी आ। आपां जदों उन्होंने पैराफ्रेज की होंदी इन्फॉर्मेशन, जिवें आपां राइटिंग दे विच पैराफ्रेज करते हैं तो पैराफ्रेजिंग होंदी है, तो जस्ट वो आपां उही डिफाइन करना होंदा कि पैराफ्रेजिंग कित्थे आ। फॉल्स कॉन्ट्राडिक्शन होंदी है, जिवें उधर इन्होंने कहा सी रिड्यूस कर दिता है, फर्टिलाइजर विल बी नीडड इत्थे उन्होंने कहा सी, बट उधर उन्होंने की कहा सीगा एलिमीनेट कर दी है नीड ऑफ फर्टिलाइजर, दैट वॉज फॉल्स। नॉट गिवन की होंदा, वो नॉट गिवन भी तुहानूं पता लग गया होना भी नॉट गिवन ये नहीं होंदा कि अपने कोल इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिती होगी। नॉट गिवन इज़ दैट जिथे कि आपां नूं जिहड़ी भी इन्फॉर्मेशन दिती आ उहदे विच की पॉइंट मिसिंग है, जिवें इत्थे मैथड फॉर प्रिडिक्टिंग ये मिसिंग सीगा, तां करके आपां इहनूं नॉट गिवन लगाया। बाकी सारा तो दिता ही सी उन्होंने, अर्थ पापूलेशन भी दिता सीगा ते उन्होंने रिसेंटली की गल भी की सी, भी हुणे जी उन्होंने किया प्रोडिक्शन की गल भी की सी, मैथड जिहड़े आ वो चेंज होए आ जां नहीं होए वो नॉट गिवन सीगा। तो जे तुहानूं मेरी वीडियो वधिया लगी है तो इनू लाइक कर दिओ ते नाल दी नाल चैनल नूं सबसक्राइब कर लिओ बैल आइकन प्रेस करके, तो जदों भी मैं कोई नवी वीडियो अपलोड करा तुहानूं नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम एंड हैव अ नाइस डे गाइस।